Dear students, good morning everyone. Solve dou to z by dou x square minus 4 times dou to z by dou x into dou y plus 4 times dou to z by dou y square is equal to e to the power twice x plus y. We have to solve this partial differential equation, which is homogeneous linear partial differential equation. Solution: given that dou to z by dou x square minus 4 times dou to z by dou x into dou y plus 4 times dou to z by dou y square is equal to e to the power twice x plus y. This equation we can write further: dou square by dou x square minus 4 times dou square by dou x into dou y plus 4 times dou square by dou y square, enclose the bracket, multiply by z is equal to e to the power twice x plus y. Here we get z function common. Now dou square by dou x square we can write d square, dou square by dou x into dou y we can write d into d dash, dou square by dou y square we can write d dash bracket square. So we get this equation as follow: this is equal to d square 4 times this is equal to d into d dash plus 4 times this is equal to 4 d dash square into z is equal to e to the power twice x plus y. Let it be equation 1. तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको पॉलिनोमियल ऑफ डी में लिखना होगा, यानी इस पॉलिनोमियल में इक्वेशन 1 फॉर्म में लिखना होगा. कौन सा भी एग्जाम्पल रहे तो आपको उसको डी और डी डैश के नोटेशन में लाना है. वेयर आप जानते हो डी यानी डो बाय डो एक्स, डी डैश यानी डो बाय डो वाई. दैट मीन्स डी मीन्स partially differentiate with respect to x variable, d dash means partially differentiate with respect to y variable. Both are derivative operator. After that, auxiliary equation of equation 1 we can be obtained by putting d is equal to m and d dash is equal to 1 in this polynomial. गॉट इट. दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है इक्वेशन 1 का, तो आपको सब्सटीट्यूट करना है डी का वैल्यू m और डी डैश का वैल्यू 1. तो ये पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर है तो डी का वैल्यू m है तो आपको मिलेगा m स्क्वायर. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे d इंटू डी डैश है तो d का वैल्यू m है और d डैश 1 है, m इंटू 1 m, और ये हो जाएगा आपका -4m प्लस आफ्टर दैट डी डैश का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4. सो वी गेट m स्क्वायर -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट we after that this expression we can write m minus 2 bracket square is equal to 0. So we get root or solution m is equal to 2. These roots are real and equal. ये रियल है और इक्वल है. So we can write complementary function as formula. We have already seen in that previous lecture video. So complementary function is equal to function of y plus 2x plus x times g of y plus 2x called as equation 2. तो ये फॉर्मूले से आया है, ये ध्यान रखना है. ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखा के दिया है. गो थ्रू द फॉर्मूली, आपको नज़र आएगा. अगर रूट आपके रियल और इक्वल रहे, यहाँ पे आपका रूट क्या है, रियल और इक्वल है, तो उस वक्त रूट इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला ये है. गो थ्रू दी प्रीवियस वीडियो लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आफ्टर दैट
we have to find particular integral. So pi is equal to 1 upon d square minus 4 into d dash plus 4d dash square multiplied by e to the power twice x plus y called equation स्टार. पी आई कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे ये जो है पी आई के लिखने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 1 अपॉन ये जो राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी डैश प्लस 4 इंटू डी डैश ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई. ये पी आई का स्ट्रक्चर है. 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस सी वाई. आपको ये डिनोमिनेटर में लिखा है 1 अपॉन दिस इंटू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई. So this is the basic. Now after that put d is equal to 2 and d dash is equal to 1. D means x coefficient. What is x coefficient? X coefficient is 2. D means x coefficient. Here x coefficient 2 and d dash means y coefficient. Y coefficient 1. So d dash is equal to 1. So now substitute d and d dash value. We get pi is equal to 1 upon d square. We get 2 square 4 minus 4 into 2 into 1 plus 4 because d dash 1. So 1 square 1 multiply by e to the power twice x plus y. सिंपली हमें क्या करना है, जहाँ पे d है वहाँ पे 2 पुट करना है, d डैश है जो वहाँ पे 1 पुट करना है, तो आपको ये मिलेगा pi. इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई. नाउ एट दिस 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 गेट 0. सो वी गेट डिनोमिनेटर 0 विच इज़ अब्सर्ड और फेल्यूर केस. यहाँ आपको समझ में आ रहा है. आप जब d का वैल्यू 2 और d डैश का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1 अपॉन 4 माइनस 8 प्लस 4 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई. और ये आपकी अपसर्ड केस है. अपसर्ड केस मीन्स आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है बिकॉज 1 अपॉन 4 प्लस 4 बिकम 8. 8 माइनस 8 0 दैट इज़ 1 अपॉन 0 हो रहा है. ये आपका टोटल डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. दैट इज़ ये फेल्यूर केस हो गई. So which is absurd case. So we differentiate after that. So we differentiate with respect to d to equation star. ये जो equation star है इसको आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू d. तो आपको क्या मिलेगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स बाहर आएगा, ये फॉर्मूला है, x आउटसाइड निकालना है और 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव लेना है. अभी आपको किसका लेना है, ये x और इसका डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर, 2d. 4d डैश कॉमन है तो 4d डैश कांस्टेंट है, नॉट कॉमन, कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ d 1 हो जाएगा, डोंट राइट 1. एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई सेकंड स्टार इक्वेशन. तो आपको ये पी आई मिलेगा, उसको हम सेकंड स्टार नाम देते हैं. फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगेन वी पुट डी यानी एक्स कोएफिशिएंट 2, डी डैश यानी वाई कोएफिशिएंट 1. आपने डी का वैल्यू 2 और डी डैश का वैल्यू 1. डी यानी एक्स कोएफिशिएंट, डी डैश यानी वाई कोएफिशिएंट. ये आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी आई इज इक्वल टू
x into 1 upon, now put d का वैल्यू 2 to the 4. Now d dash is equal to 1, so 4 into 1 4 multiply by e to the power 2 twice x plus y. यहाँ पे e के पावर में लिखो, ये बाय मिस्टेक हुआ है. यहाँ पे क्या आएगा आपका e to the power 2x plus y, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में. बाय मिस्टेक ये नहीं आएगा, ये आपका गलत हुआ है. यहाँ पे ये e रेस टू टॉइस एक्स प्लस वाई रहेगा. दिस इज रॉन्ग. सो अगेन, तो समझ में आया, ये आएगा e रेस टू टॉइस एक्स प्लस वाई, ये नहीं आएगा. तो उसके बाद अगेन डिनोमिनेटर गेट ज़ीरो. फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए 4 माइनस 4 ज़ीरो. अगेन अबसर्ड केस, दैट मीन्स फेल्यूर केस है. तो फिर से हम क्या करेंगे, सो डबल स्टार जो इक्वेशन है, ये जो मैं बॉक्स किया है, इसको आप क्या करोगे, अगेन आप जैसे पहले लिखा था हमने पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है तो ये एक्स आएगा, एक्स 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव लो. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टॉइस डी, तो 2 into 1 because derivative of d 1 minus derivative of constant 0 e to the power twice x plus y. Now solve this as usual, जैसा हमने प्रीवियस टाइम किया था उसी तरह से. वंस अगेन बता देता हूँ, ये आपका पी आई है सेकंड स्टार इक्वेशन. फिर से आपने डी का वैल्यू 2, डी डैश का वैल्यू 1 पुट किया. फिर से आपको ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, यानी फिर से आपको फेल्यूर केस, अपसेट केस मिल रहा है. फिर से हम क्या करेंगे, ये जो डबल स्टार इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है तो ये एक्स आएगा. बाद में फॉर्मूले में एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 multiply by e to the power twice x plus y. After that we get pi is equal to, ये आपको मिलेगा x into x. Further we get x into x, x square 1 upon 2 e to the power twice x plus y. So this is pi is equal to x square into 1 by 2 e to the power twice x plus y. Equation third. So general solution is equal to cf plus pi. Cf means complementary function, pi means particular integral. So look that we calculate already equation 2. Observe which is our complementary function. Add with particular integral, which is particular integral. Take addition. On addition we get gs is equal to f of y plus 2x plus x times g of y plus 2x plus 1 by 2 into x square e to the power twice x plus y. This is the required solution of given homogeneous linear partial differential equation. If any doubt, please ask me. Thank you.